Good morning class. In the last previous lecture we have learned about the processes. The processes like evaporation, the processes like sublimation, separating funnel. In the last lecture we have learned about the evaporation process as well as chromatography children. Both of the processes they use for the color dye, or you can say the color component from the dye. So we have just seen the difference that when we talked about evaporation, it is going to separate out the components, whereas for the chromatography, it is going to be separate out the color from the mixture of the ink. Now, today we are just going to learn about the process of distillation. Distillation is there having two types, in which first we are going to just learn about simple distillation, and second is fractional distillation, which we learned in the next previous lecture. So today you just see the diagram, label diagram, which I have just draw on the board. You can see here the stem, and after the stem we have the typhoid stem on which we have kept the. This is known as the round bottom flask. इसे राउंड बॉटम फ्लास्क इसीलिए बोला जाता है कि नीचे से भी देयर हैविंग शेप, राउंड शेप, in which we are just keeping the mixture of miscible liquids. Miscible liquids, that means they are not going to be there having any separating layer. So miscible liquids में example आप ले सकते हो. Here I have wrote them acetone and water, alcohol and water, kerosene and petrol. Miscible liquids. Now what I have to do is, whatever the round bottom flask is there here, I am going to take the any kind of, either I am going to take kerosene, petrol, I am going to take acetone and water, or I am going to take alcohol and water inside this flask. Now what happens when you just apply the heat? Here you can see the thermometer. Then a round, long, cylindrical tube which is known as water condenser. उसे बोला जाता है water condenser, जिसके दोनों साइड we have the water film inside it, one outlet one and inlet one. Here you can see this is the outlet and this is the inlet. That means water is coming from one of the side and water is moving out from one of the side. So continuously that water is goes inside in the condenser, and from the one side it is moving outside. Now what happens children, when I am going to take that mixture, which mixture? Miscible mixture, miscible liquid, ठीक है, उसे अगर मुझे सेपरेट करना है, ठीक है, अल्कोहल वाटर दोनों का अपीयरेंस सेम है, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें अल्कोहल भी मिक्स्ड है, तो उसे अगर सेपरेट करना है तो कौन सी टेक्निक होगी? तो अल्कोहल वॉलेटाइल है, उसे इवापोरेशन से करने जाओगे तो वो आग पकड़ लेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसका इवापोरेशन कुछ इस तरह करना है कि वी आर जस्ट नॉट हैविंग दैट एक्सीडेंटल फायर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक इज, आई एम गोइंग टू टेक पोर्सिलिन पीस इनसाइड इट. मैं उसमें दूसरा डालूंगी पोर्सिलिन पीस. पोर्सिलिन पीस क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसे मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ये राउंड बॉटम फ्लास्क टूट ना जाए. ठीक है, सो क्या होगा, जैसे हम इसे हीट देंगे ये मिक्सचर को, सपोज मैंने वी आर डूइंग द सिंपल डिस्टिलेशन फॉर एसीटोन एंड वाटर. चिल्ड्रन, अब एसीटोन एंड वाटर की बात करें तो एसीटोन का जो भी पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो है 56 डिग्री सेल्सियस. वो टेम्परेचर पे वो बॉयल होके वेपर में कन्वर्ट हो, और वाटर में होगा कि इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो अगर जो भी बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस हो, दैट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, दो मिक्सचर मैंने लिए एसीटोन एंड वाटर, दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस हो मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसे कौन सी मेथड से सेपरेट किया जाएगा? सिंपल डिस्टिलेशन. प्लीज कीप इट इन माइंड दैट दो मिसिबल लिक्विड्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मोर देन 25 है, वैसे लिक्विड्स को, वैसे मिसिबल लिक्विड्स को हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करेंगे. तो ये उसका प्रिंसिपल है. अब कौन सी प्रोसेस से वो सेपरेट हो रहा है? तो अगर हम इसे हीट देंगे तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू वेपर. और हमने पढ़ा है कि जब भी
वेपर फॉर्म हो, बॉइल्ड हो, तो वो इवापोरेशन प्रोसेस है। तो इवापोरेशन में क्या होगा, मैंने सप्लाई द हीट दैट व्हाटएवर द पर्टिकुलर मिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम दैट मोर वॉलेटाइल लिक्विड evaporate faster than that of another one. That means what? Acetone और water में more volatile कौन है? Acetone. Acetone is nothing but nail remover. Nail remover जो होता है उसको आप थोड़ी देर सोसर में रखो और water को सोसर में रखो, तो थोड़ी within a 5 minutes if you observe that whatever the saucer is having the nail remover, you are not getting anything on the saucer because it easily evaporate बिलो द रूम टेम्परेचर के बिलो पे भी वो क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा, या तो उसको आपकी बॉडी पे भी रखो तो वो इवोपरेट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, जैसे आप उसको नेल पे रखोगे तो वो इवोपरेट हो जाएगा। दैट मीन्स मोर वॉलेटाइल लिक्विड जो होंगे वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होंगे। जैसे वेपर में कन्वर्ट होंगे और ये थर्मोमीटर जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो क्या होगा, देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर वेपर मूविंग इन द वाटर कंडेंसर, वो वेपर कहाँ पे चली जाएगी, वाटर कंडेंसर में, और जहाँ से इनलेट वाले को क्या करेगा, वाटर अंदर डाल रहा है, इट्स गोइंग टू इंसर्ट द वाटर कंटिन्यूअसली, ये वाटर क्या करेगा, वेपर को कन्वर्ट करेगा नाउ अगेन इनटू द लिक्विड। दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है चिल्ड्रन, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसर का मीनिंग ही क्या हुआ कि व्हाटएवर द पर्टिकुलर वेपर उसको कंडेंस करना, कूल करना और अगेन लिक्विड में कन्वर्ट करना। सो ये प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जैसे आप हीट दोगे वेपर किसकी सबसे पहले होगी, जो मोर वॉलेटाइल होगी। तो हमें ये दोनों में सबसे पहले देखना है मोर वॉलेटाइल कौन है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो मोर वॉलेटाइल। तो यहाँ पे एसीटोन का 56 डिग्री है, तो इट इज मोर वॉलेटाइल देन दैट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले जो भी वेपर हमें मिल रही है वो किसकी होगी, दैट वेपर इज दैट ऑफ एसीटोन। अब ये वेपर कहाँ जाएगी, वाटर कंडेंसर में। वाटर कंडेंसर में जैसे ही जाएगी, मैंने यहाँ पे इनलेट और आउटलेट वाल्व में, वो किससे कनेक्टेड है, वाटर पाइप से, जिसमें एक पाइप वाटर पाइप में से वाटर अंदर आ रहा है, दूसरी वाटर पाइप से वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये वाटर जो भी अंदर आ रहा है वो क्या करेगा, ये वेपर को कूल करेगा, ठंडी करेगा, कंडेंस करेगा। कंडेंस कूल करो तो वेपर अगेन किस में कन्वर्ट होगा, वाटर, वॉट एवर द लिक्विड मैटर। ठीक है, सो ये क्या हुआ, जो एसीटोन की वेपर है अपना कूल हुई, कंडेंस हुई, और जो हमें ये लिक्विड मिला उसे हम बोलेंगे दैट इज द एसीटोन फर्स्ट, या तो आप उसे बोल सकते हैं डिस्टिलेट। तो सबसे पहले जब भी हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं तो जो भी लिक्विड बाहर आएगा वो मोर वॉलेटाइल लिक्विड होगा, या तो हम बोल सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो सबसे पहले आएगा। ये थर्मोमीटर का इधर यूज क्या है, इट मेजर द टेम्परेचर, और जैसे ही वो 56 डिग्री पे पहुंचेगा तो एसीटोन, देन आफ्टर फर्दर व्हाटएवर द बॉइलिंग इज देयर नाउ रेडी। फिर से ये जो भी अंदर लिक्विड है उसको गर्म करेगा, ये लिक्विड वाटर है, तो क्या करेगा, पहले एसीटोन जैसे ही बाहर निकल गया तो ये तो सेपरेट ही करो, देन वी हैव टू अगेन जस्ट कीप द बीकर, and then again water reaches to the temperature of 100 डिग्री। अब वाटर अगर 100 डिग्री पे पहुंचा है तो मुझे दूसरा जो लिक्विड मिलेगा वो क्या होगा, वाटर। तो कौन सा प्रिंसिपल हुआ, तो ये बेस्ड ऑन द इवापोरेशन। सबसे पहले मैंने इवापोरेशन किया, उसे बॉइलिंग दिया, बॉइलिंग से मैंने उसको वेपर में कन्वर्ट किया, इवापोरेशन किया, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस फॉर्म, एंड दैट गैसियस फॉर्म अगेन फॉलो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, इवापोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन। सो वी कैन सी दैट सिंपल डिस्टिलेशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। अब उसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे हम इसके प्रिंसिपल में लिखेंगे दैट इट इज यूज्ड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ केमिकल्स इन अ मिक्सचर और इन स्टेट ऑफ केमिकल्स यू कैन राइट दैट टू मिसिबल लिक्विड्स। Two miscible liquids which have the difference in the boiling point which is more than 25 degree Celsius. Children, आपकी टेक्स्ट बुक में 25 केल्विन लिखा है, प्लीज कट इट आउट, राइट इट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, बिकॉज वॉट एवर द थर्मोमीटर विच वी आर यूजिंग दैट इज द केमिकल लैब apparatus, so we cannot write in Kelvin, we can write in, we are just going to write with degree Celsius. तो ये जो लेबल डायग्राम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
which is going to be asked in your exam in 2 marks, that right, draw the label diagram each and clean label diagram for simple distillation. फिर से मैं समझा दूँ कि ये राउंड वाटर जो भी apparatus क्या है चिल्ड्रन? The particular vessels, or we can say that a material which is used for holding or just keeping the chemical inside in the chemistry lab, तो उसमें apparatus बोलूँगी. तो यहाँ पे मैंने राउंड वाटर फ्लास्क लिया है, उसके साथ I just move that particular flask and just insert the thermometer inside it. I just attach that particular round water flask to the water condenser chamber. You can see here where I am having inlet one and outlet one. Inlet one, it is again connected with the water pipe from which water is coming inside, and outlet one में से वाटर पाइप में से वाटर कहाँ जाएगा? बाहर. जो भी गर्म हो गया है पानी वो बाहर जाएगा. फिर से इनलेट वाल्व क्या करेगा? कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करेगा. अब मैं क्या करूँ? ट्राइपॉड स्टैंड रखा है मैंने, इसके ऊपर राउंड बॉटम ग्लास रखा है, ये गिर ना जाए ज़्यादा हीट की वजह से, उसके लिए मैंने क्लैंप से ट्राइपॉड स्टैंड व्हाटएवर द स्टैंड पे रखा है यहाँ पे. तो ये क्लैंप से फिट कर दिया जिसकी वजह से वो हीट के दौरान टूटे नहीं. अब जैसे ही मैं इसे हीट देती हूँ चिल्ड्रन, सो व्हाट हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर mixture now starts to evaporate, boil and starts to evaporate. तो ये टूट ना जाए इसीलिए मुझे उसमें पोर्सिलेन पीसेस डालना बहुत ज़रूरी है. पोर्सिलेन पीस क्या करेंगे? टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे और ये राउंड वाटर फ्लास्क को टूटने देंगे नहीं. अब जैसे ही बॉयल हुआ, बॉयल होने के बाद क्या होगा? ये टेम्परेचर जो है अगर 56 दिखा रहा है तो वो हो गया हमारा एसीटोन. तो क्या होगा? वेपर जो भी फॉर्म हो रही है वो कहाँ पे जाएगी? वाटर कंडेंसर. वाटर कंडेंसर में जैसे ही जाएगी तो वो कूल होगी, कंडेंस्ड होगी बाय द यूज ऑफ द वाटर एंड कन्वर्ट इनटू द एसीटोन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. उसे मैं बोल सकती हूँ डिस्टिलेट. द पर्टिकुलर लिक्विड विच इज कमिंग आउटसाइड द बीकर आफ्टर डिस्टिलेशन इज नोन एज डिस्टिलेट. जैसे फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट मिलता है, तो डिस्टिलेशन के बाद हमें क्या मिलेगा? डिस्टिलेट. ठीक है, तो ये हो गया एसीटोन. अब मैंने ये बीकर हटा लिया, मैं दूसरा बीकर रख रही हूँ, फिर से मैं उसे हीट करती हूँ, तो क्या होगा? नाउ द टेम्परेचर रीचेस टू 100 डिग्री सेल्सियस. फिर से जो भी बाकी बचा है यहाँ पे हम, तो वो है पोर्सिलेन पीसेस को कोई इफेक्ट होगी. और जो बाकी बचे वो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा. वाटर वेपर इंसर्ट होगी इसमें वाटर कंडेंसर में, कूल कंडेंस होगी और दूसरा डिस्टिलेट मिलेगा, वो होगा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे मिलेगा, एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये केरोसिन वाटर, केरोसिन पेट्रोल है, एसीटोन वाटर है, अल्कोहल है, वाटर है, जिसके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. वैसी मेथड के लिए, वैसे पर्टिकुलर लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन. प्लीज गो थ्रू द डायग्राम thoroughly. You have to draw this diagram. So this is all about simple distillation. Tomorrow we briefly discuss about the fractional distillation, and we just also learn about the difference. We just also learn about the separation of the air components from air, and lastly we discuss about the crystallization process and purification of water, which you have learned I think in 7th class, how to purify the water. So that what we have to just going to learn in the next previous lecture. Thank you.